A very good morning to my lovely children. How are you today? So children, today we are going to learn about a very interesting topic, adverb. Okay? So now let us read. And first I want to ask something, that what is adverb? Adverb hota kya hai? Right? So here we are going to read. What is adverb? Adverb tell us more about the verbs. Right? Adverb tell us more about the verbs, and they tell us how, where, when action takes place. Means ये हमें ये बताता है कि एक्शन जो है वो एक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट, when, where, कब हो रहा है. तो एडवर्ब क्या है कि ये वर्ब के बारे में हमें और ज़्यादा बताता है. वर्ब के बारे में, वर्ब जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इफ़ आई से दैट रेखा राइट्स नीटली, तो रेखा क्या कर रही है? राइट, लिख रही है नीटली. और कैसा लिख रही है? मतलब लिख रही है तो कैसा लिख रही है? नीटली, बहुत ही साफ, राइट, साफ लिख रही है. ओके, सो नाउ हियर इज अ वन इंटरेस्टिंग थिंग आल्सो. वी यूज वी एंड एल वाई विद एडजेक्टिव. ओके, इन एडवर्ब, इन एडवर्ब. ओके, एडवर्ब में हम ज़्यादातर क्या ऐड करते हैं? एल वाई इन एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव के जो एंड में है उसके एंड में एल वाई ऐड करके हम किस में चेंज कर देते हैं? एडवर्ब में. ओके, सो हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल. ही ईट्स फास्ट. तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, ही ईट्स फास्ट मींस व्हाट इज वर्ब हियर? वर्ब इज ईट्स, राइट. मींस वर्ब क्या है यहाँ पे? ईट्स. और इसके बारे में मोर मींस व्हाट इज एडवर्ब सेइंग? एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट वर्ब्स. एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में और बताती है. तो यहाँ पे एडवर्ब क्या हो गया? मतलब खा रहा है वो, और फास्ट. फास्ट इज एडवर्ब हियर. ओके, नाउ द सेकंड एग्जांपल, दे विल कम लेटर. दे विल कम लेटर मींस, and what is verb here? What is verb here? They will come. This is helping verb and this is main verb, right? They will come later. तो यहाँ पे verb को modify कौन कर रहा है? उसके बारे में और चीज ज्यादा क्या बताई जा रही है कि वो यहाँ पे आएंगे पर later, मतलब बाद में आएंगे, right? आएंगे but बाद में. Okay, is it clear to you that what is adverb? Adverbs tell us more about the verb. Adverb हमें verb के बारे में और ज़्यादा बताता है, right? And it tell us how, where, when action takes place. और हमें ये और क्या बताता है कि कहाँ पे, कैसे, कब वो action हो रहा है. So I think this is clear to you. Okay, adverb clear है कि adverb होता क्या है? Okay, now so we are moving on the other topic on this part, types of adverbs. Okay, we are going to read types of adverb, and there are 6 types of adverbs. Adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time, and adverbs of frequency, adverbs of direction, right? Adverbs of degree. तो कौन-कौन से हैं? Just say together. Adverb of manner, place, time, frequency, degree and direction, right? कौन-कौन से? Adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of direction and adverb of degree. Okay? 6 हो गए, तो इनको ध्यान रखना है. How many types of adverb are there? There are 6 types of adverbs. And can you tell me the name of adverbs? All the types of adverb? Yes, there are 6 types of adverbs, and according to this, they are like adverb of manner, adverb of time, adverb of direction, adverb of frequency, right? Adverb of place and
and adverb of degree. Okay. So first we are talking about adverb of manner. Manner related, and they are formed adding ly to the adjective. Adverb of manner है, ये कैसे बनाए जाते हैं? मीन्स ये भी वही है, इट टेल अस हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस. ये हमें ये बताता है कि ये एक्शन जो है वो कैसे हुआ है, राइट? टेक्स प्लेस, एक्शन टेक्स प्लेस. So and we make adverb of manner by adding ly to the adjective. adverb of manner हम लोग कैसे बनाते हैं? एडजेक्टिव में एंड में क्या ऐड कर देते हैं? ly, right? I have written some adverb of manner here, like cheerfully, painfully. पेनफुल की स्पेलिंग है पेनफुली कर दिया. cheerful होता है cheerfully. आप देखते हो एंड में ly ऐड कर रहे हैं. केयरफुली होता है ना, केयरफुली. स्लो के बाद में हम ly ऐड करा, स्लोली, राइट? बैड एडजेक्टिव है ना, तो एडजेक्टिव के एंड में ly, बैडली, राइट? इजी कहते हो आप, तो हम लोग y हटा के क्या ऐड करेंगे? easily, राइट? वेल ऑलरेडी ऐड है, इसमें नहीं करते हैं, एंड एटसेट्रास. ओके. सम एग्जांपल्स लाइक वी एट लंच क्विकली, इनको हमने लास्ट में यूज करा, राइट? तो एडवर्ब जो है मैनर, इसमें ये वाले जो वर्ड है ये लास्ट में ऐड करें, राइट? बीच में भी आ सकते हैं, बट आप ये पहचानोगे कि एडजेक्टिव में ly अगर ऐड हो रहा है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है. Like I am giving you an example. The children are playing happily with their toys. The children are playing. अब यहाँ पे verb क्या है? Verb कौन सी है? Which is a verb here? So according to you, this are is helping verb and main verb is playing, right? And happy adjective है, उसमें आपने ly ऐड कर दिया, then it will change into adverb हो जाएगा, right? So with their toys, जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, खुशी से खेल रहे हैं अपने toys से, right? So happily is adverb here. Okay? Is it clear? Now we ate lunch quickly. अब हमने लास्ट में भी एडवर्ब ऐड कर दिया. क्विक होता है एडजेक्टिव, तो उसके एंड में ly ऐड करके हमने किस में चेंज कर दिया? एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट? एडवर्ब ऑफ मैनर में चेंज हो गया तो क्या हो गया? क्विकली, हम जल्दी खाते हैं, राइट? शी स्माइल्ड हैप्पीली, उसने कैसे? खुशी से मुस्कुराई. ही रॉक्ड द क्रेडल जेंटली, क्रेडल को अच्छे से चला रही है. मीन्स कैसे चला रही है? अच्छे से. इससे आपको पता लगता है हाउ कब सेंस निकलता है, कैसे चीज वो हो रही है, राइट? एडवर्ब ऑफ मैनर, वो चीज हो कैसे रही है. तो कैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे कैसे खेल रहे हैं? खुशी से खेल रहे हैं, है ना? और वी एट लंच क्विकली में कैसे खा रहे हैं? मतलब जल्दी खा रहे हैं. तो ये चीज पता लगती है कि कैसे वो चीज हो रही है. ओके. सो नाउ कम ऑन द सेकंड एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब्स ऑफ place. Okay, now we are going to read about the adverb of place. It tell us more where the action takes place. Means ये हमें बताता है कि वो जो action है वो कहाँ हो रहा है, right? So I have written some adverb here like above, for, on, away, where, outside, behind, etc. इस साइड से आप डायरेक्ट का जो प्लेसेस हैं उसको आप शो करते हैं इसमें एडवर्ब में, राइट? सो आई हैव रिटन वन एग्जांपल. हर चिल्ड्रन गो एवरीवेयर विद हर, राइट? हर चिल्ड्रन, उसके बच्चे. गो इज हियर वर्ब, राइट? द चिल्ड्रन गो एवरीवेयर, सब जगह. विद हर, जाते हैं, उसके बच्चे उसके साथ सब जगह जाते हैं, राइट? And everywhere is adverb of place. क्या है यहाँ पे? Adverb of place है. Okay? I think this is
clear to you? The children are playing upstairs. The children are playing upstairs. Where the children are playing? So what will you give the answer? इसका आप आंसर अभी क्या दोगे? The children are playing upstairs. You are telling me that they are playing upstairs. Means ऊपर खेल, जो upstairs है ऊपर की तरफ सीढ़ियों पे खेल रहे हैं, right? ऊपर की तरफ खेल रहे हैं. Okay. And we reached for the kitchen. Kitten. We searched for the kitten everywhere. We searched for the kitten everywhere. So, where did we search the kitten? Where did we search the kitten? हमने kitten को कहाँ ढूंढा? So then you will tell me everywhere. आपने क्या? You will answer me that everywhere you searched. मतलब आपने सब जगह देख लिया, right? तो यहाँ पे आपका सेंस निकलेगा प्लेस में वेयर, और एडवर्ब ऑफ मैनर में किसका आएगा? हाउ, मीन्स कैसे, राइट? जैसे कि क्विकली, वी एट क्विकली, वी रीड क्विकली, राइट? तो इस टाइप से हाउ का सेंस आता है, और प्लेस में किसका सेंस आ रहा है? वेयर का. मतलब आपको ये पढ़ के पता लगेगा कि क्या चीज़, वो चीज़ कहाँ हो रही है, राइट? प्लेस, तो आप उसमें प्लेस शो करते हो. ओके, क्लियर? पीछे, आगे, साइड या उधर, राइट? तो आप कहते हो ऊपर, नीचे, इस टाइप से बताते हो प्लेसेस. तो ओके, नाउ वी हैव रेड about the types of adjective. Two types of adjective we have already read, and now the turn of the third adverb, right? We have read the adverb, two types of adverb already. The first one is adverb of manner, and the second one is adverb of place. Now the time of the adverb of time. Adverbs of time. It tells us where the action takes place. ये भी बताता है कि जो एक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है. प्लेस का था जो कि हमें बताता था, और एडवर्ब ये जरूर करेगा. So children, we have read two types of adverb already. The first one is adverb of manner, and the second one is adverb of place. So now the time of the moving on the third part of adverbs, types of adverb, which is adverbs of time. It tells us when the action takes place. ये हमें बताता है कि जो एक्शन है वो कब हो रहा है, राइट? वो एक्शन कब हो रहा है. It tells us when the action takes place. Like now, soon, tomorrow, already, tonight, and today, last month या last year, etc. Right? Tonight, today, last month, last year, etc. तो इस टाइप से पता लगता है. जैसे कि हम एग्जाम्पल आपका यहाँ पे लिख रखा है, he will come later. He will come later मतलब वो आएगा तो कब आएगा? Later, बाद में, right? तो that later shows the adverbs of time. And the second example is we go to the school every day. हम स्कूल जाते हैं, और कब जाते हैं? Every day, right? स्कूल जा रहे हैं पर every day. तो every day later we are showing that the adverb of time, right? Time को represent कर रहे हैं adverbs of time को, right? हम स्कूल जाते हैं पर कब जाते हैं? Every day, हर दिन जाते हैं. Okay? Now the moving on the word, four types of adverb, which is adverbs of frequency. Frequency. Okay? Just speak up with me. Frequency, right? Frequency, jaldi. Frequency. It tells us how often something happens, right? How often something happens means कोई भी चीज है वो कब हो रही है, किस टाइम हो रही है, how often, कितनी बार हो रही है, right? Frequency का मतलब है frequently. आप कहते हैं ना कि जल्दी, है ना? Frequently, जल्दी, कब हो रही है वो चीज, right? So here are some adverb of frequency like always, sometime, often, rarely, hardly, ever, right, etc. means और हमेशा ही होती है, कभी कभी होती है, sometime, often, कभी हो जाती है, अक्सर हो जाती है,
रेयरली मीन्स चांसेस हैं कि हो भी जाती है और नहीं, कभी कभी ना हार्डली, मुश्किल से, राइट, एवर सही होती है, राइट। तो आई हैव गिवन सम एग्जांपल कि नॉर्मली ईट्स 3 मील्स अ डे, मीन्स वो अक्सर मतलब नॉर्मली है कि वो जो अपना 3 मील्स है पूरे दिन में कवर करके लेती है ना। एंड समटाइम्स आई कुक डिनर फॉर एवरीवन, समटाइम्स मतलब हम कभी कभी हम सबके लिए, जो मैं हूँ सबके लिए डिनर बना देती हूँ, राइट, कभी कभी, समटाइम, समटाइम का यूज कर रहे हैं, दिस इज एडवर्ब ऑफ frequency. Normally, she normally eats 3 meals a day, right? And sometimes I cook dinner for everyone. Okay, so these indicate the adverb of frequency. Okay, so how many types of adverb we have read? The first is adverb of manner, the second is adverb of place, and the third is adverb of time, and the fourth is adverb of frequency. Now the time of the two adverbs, which is adverb of direction and adverb of degree. तो आपको डायरेक्शन से यही क्लियर हो गया होगा, डायरेक्शन की बात होगी जिसमें मीन्स विच टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ अ मूवमेंट, जो मूवमेंट में जो डायरेक्शन है उसके बारे में हमें पता लग जाएगा। ऑब्वियस की बात है कि डायरेक्शन है तो उस साइड का ही दिखाया जाएगा, कुछ मूवमेंट हो रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। द थीफ रैन अवे इन द डार्क, द थीफ जो चोर हैं वो भाग गए इन द डार्क, अंधेरे में, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस विच वर्ड इज शोइंग द डायरेक्शन, एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन अवे, वहाँ से भाग गए, दूर भाग गए, इन द डार्क। द फील्डर मूव बैकवर्ड टू कैच द बॉल, जो फील्डर होता है वो पीछे की तरफ हुआ टू कैच द बॉल, बॉल को कैच करने के लिए, ओके। तो ये मूवमेंट है मतलब पीछे की तरफ हुआ, तो पीछे की तरफ बैकवर्ड, बैकवर्ड इज विच टाइप ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन, पीछे की तरफ जो, ओके, क्लियर, ओके। नाउ एंड द लास्ट वन, लास्ट टाइप ऑफ adverb is adverb of degree. Degree बता रहा है, tell us how much or how complete an action is. मीन्स कितना एक्शन, वो एक्शन हुआ और कितना नहीं हुआ, मतलब हुआ भी कंप्लीट या नहीं हुआ, ये चीज़ बताता है। जैसे कि दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मीन्स अगर हमने बोला कि दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये जो बुक है ये पूरी तरह बहुत ही अच्छी, मतलब ये बुक पढ़ चुके हैं, राइट, एक्शन हो चुका है और ये बुक कैसी है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी है, पढ़ने में अच्छा लगेगा। एंड द सेकेंड इज एग्जाम्पल, आई ऑलमोस्ट मिस्ड माई फ्लाइट, आई ऑलमोस्ट मतलब हम फ्लाइट को मिस करने ही वाले थे, राइट, मैं फ्लाइट को मिस करने ही वाली थी, आई ऑलमोस्ट मिस्ड माई फ्लाइट, ठीक है। इस टाइप से ये डिग्रीज में आते हैं। तो आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लियर हो गया होगा कि क्या है एडवर्ब्स, क्या है, व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब इज, एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट द वर्ब, एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट द वर्ब, राइट, क्लियर। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स आर देयर, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडवर्ब। The first one is adverb of manner, second is adverb of place, third is adverb of time, and fourth is adverb of frequency, fifth is adverb of direction, and sixth is adverb of degrees. Okay, I hope you understand well. If you have any doubt then you may ask. Okay, so till then, goodbye.